بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے ثاقب ڈیجیٹل میڈیا۔ امید کرتا ہوں کہ ان سخت ادوار کے اندر بھی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شیخ رشید صاحب کی کچھ ویڈیوز کچھ دنوں سے چل رہی ہیں ان کی گرفتاری کے بعد۔ ہر ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے مزید شرمندگی ہوتی ہے اپنی ذات سے کہ یار دس از واٹ وی ہیو ڈن ٹو پاکستان۔ ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ جہاں پر غلط ہو آپ وہاں پر اٹھ کر آواز نہیں اٹھاتے، آپ کھڑے نہیں ہو جاتے، تو آپ کل کو اس برائی کی جڑ میں سے آپ بھی ہیں، آپ اس برائی کے ذمہ داروں میں سے ایک ہیں۔ ابھی میں نے ایک شیخ رشید صاحب کی تھوڑی دیر پہلے ویڈیو دیکھی ہے کہ ان کو جب پیش کیا جا رہا ہے ہتھکڑیوں میں اینڈ آل دیٹ، اینڈ وہ گرے ہیں زمین کے اوپر اور کھینچا جا رہا ہے ان کو، اور پھر وہ نیچے سے کہ کانسٹیبل اور وہ پکڑ کے ان کو اٹھا رہا ہے، جس طرح پتہ نہیں کلبھوشن یادو یہی شیخ رشید ہی ہے۔ 50 سال ناظرین، 15 سے زیادہ وزارتیں اس بندے نے کام کیا ہے، 1 روپیہ تو کرپشن نہ نہیں اس بندے اتنے کٹ سکے، ناٹ ایون اے سنگل پینی آپ اس کے اوپر ثابت نہیں کر سکے۔ اور شیخ رشید کا جرم اس ٹائم پہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ کھلا کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو جس میں شیخ رشید کو پیش کر رہے ہیں اور پیچھے سے دھکا مارا ہے کسی نے، اور شیخ صاحب وہ ایک پولیس اہلکار ہے اس کے جا کے سینے میں لگتے ہیں، اور ان کو وہ مومنٹ ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا، اس کو الفاظ کے اندر آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے تھے یار۔ وہ مومنٹ تھا کہ جہاں پر شاید شیخ رشید اپنے 10-15 سیکنڈز میں جب وہ کانسٹیبل کے نے ان کو گلے سے لگایا ہوا ہے نا، وہ سوچ رہا ہوگا کہ یار دس از واٹ مائی کنٹری از ڈیلیورنگ بیک ٹو می، دس از واٹ مائی کنٹری از گیونگ بیک ٹو می فار مائی سروس آف 50 ایئرس۔ میں ایک چیز کے اوپر بڑا متفق ہوں، ایک چیز کے اوپر بڑا کھل کے بضد ہوں، ایک چیز کے اوپر بڑا قائل ہوں کہ سیاست کے اندر بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے۔ تو تڑاں بلو رانی یہ وہ ان جملوں سے میں شیخ صاحب کے کبھی اتفاق نہیں کیا۔ مجھے ایک دن کچھ وقت گزرا شیخ رشید صاحب کے ساتھ گزارنے کا کنٹینر کے اوپر، میں شیخ صاحب کی سیاسی بصیرت اور ان کی عقل دانش کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ The man knows what he's doing، لیکن at the same time میں نے تب بھی شیخ صاحب سے ہنستے بزرگ آدمی ہیں، بڑے ہیں ایج میں میرے سے بہت، تو میں نے تب یہ کرنا کہ شیخ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یار یہ تھوڑا سا زیادہ کر جاتے ہیں، آپ بھول جائیے ساری چیزیں، بھول جائیے۔ لیکن جو شیخ صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو رویہ ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، اور جو ان کو سبق سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سبق شیخ رشید کو نہیں سکھایا جا رہا، یہ سبق آپ کو اور مجھے سکھایا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں دس از ہو یو آر۔ وہ تو سابقہ وزیر داخلہ اور کیڑی وزارت ہے جی شیخ رشید نے نہیں جتنے کام کیتا، کون سا پورٹ فولیو جس پہ کام نہیں کیا۔ امیجن کریں کل کو آپ کو اور مجھے پکڑ لیا جائے، اگر آپ کی اور مجھے میری مثال بنانی ہو تو یہ کیا کریں گے کیا ہمارے ساتھ؟ میں پھر بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے، طلال چودھری صاحب کی زبان بھی اتنی ہی گندی ہے، طلال چودھری کی بھی مثال اینجی بننی چاہیے، اور یہ بیٹھ کر ڈرامے کر رہے تھے سارے۔ میں پچھلے کئی دنوں سے یہ بکواس دیکھ رہا تھا، بہ کے روز ڈرامے کر دے سی، یہ رونا شروع ہو گئے ہیں، یہ ابھی سے بلبلانا شروع ہو گئے ہیں پی ٹی آئی والے، شیخ رشید رو پڑا، یہ رو پڑا۔ او بے شرمو، جس طرح تمہارے لیڈران کو جیلوں میں جس طرح رکھا گیا اور جتنے وی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ان لوگوں کو پیش کیا جاتا رہا ہے، اس طرح تو اللہ کرے کہ سارے نو جیلوں نصیب ہونا جتیاں تھے۔ عام پاکستانیوں کے 95-98% پاکستانیوں کے تو گھروں کے ویسے کمرے نہیں، جس طرح کی مریم نواز کی اس جیل کے کمرے کی فوٹوز آ رہی ہیں جہاں پر وہ نائٹی پہن کر ہوتی تھی۔ کیڑی جیل جیسے تمہیں نائٹیاں لبدیاں سڑا گھوم پھر رہی ہوتی تھی اور آپ کی ویڈیوز بنتی تھی، وہ کمرے کی فوٹیجز آ رہی ہیں، اب کہتے پھر رہے ہیں ہمیں تو جی کوٹڑی کے اندر رکھا جاتا رہا۔ کیا رہے ہو تم لوگ؟ میں اس ایک چیز کے اوپر بار بار کہتا ہوں اور میں سخت بضد ہوں اس ایک چیز کے اوپر کہ یہ بغاوت، یہ سیاسی وکٹمائزیشن یہ ملک کو آگے لے کر نہیں جا سکتی بھائی۔ یہ آپ کے اندر کے چھوٹے انسان کی انا کی تسکین کے لیے تو کچھ ہو سکتا ہے، جو شیخ رشید کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں، جو شہباز گل کے ساتھ آپ نے کیا، جو فواد چودھری کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا، یہ آپ کے اندر کے چھوٹے انسان کی انا اس کی تسکین کے لیے تو ہو سکتا ہے۔ یہ ملک و قوم کی خدمت نہیں کر رہے، آپ کسی بھی طرح سے آپ جمہوریت کی خدمت نہیں کر رہے ان کے ساتھ۔ آپ کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو بھی اس سارے عمل کا حصہ ہیں، آپ لوگوں کے لیے نفرتیں بڑھ رہی ہیں، ہر گزرتے سیکنڈ بڑھ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ وہ نفرتیں کس طرح ملٹی پلائی کرتی جا رہی ہیں۔ وہ کوئی بھی ہوئے whosoever، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں۔ شیخ رشید 75 سال کا بندہ ہے، آپ اس کو چوکو چوراہوں میں ٹھڈے مار رہے ہو، دھکے مار رہے ہو، زمینوں کے اوپر گرا رہے ہو اس کو، اور وہ پھر مطلب what he has done، اس نے کہا کیا کہ جس چیز کو سزا دی جا رہی ہے، لیکن آپ لوگ لگے ہوئے ہو اور شرم ہی نہیں آ رہی، رک ہی نہیں رہے یہ معاملات۔ ایک دن ویٹ کیا، 2 دن ویٹ کیا کہ نہیں یار کچھ شرم آ جائے گی، سیاست دان ہے، کچھ ان کو شرم آ جائے گی۔
तुम लोग बैठ कर हमें कहानियां सुना रहे हो आकर के जी इन्होंने हमारे साथ ये किया था, इन्होंने हमारे साथ ये किया था। मतलब ਤੁਹਾਡੀ औकात कुल औकात और ਤੁਹਾਡਾ ज़र्फ ये वे कि अगर तुम में से किसी के साथ गलत हो भी गया था तो आप उसके बदले बैठ के एक दूसरे से लेने बैठे हुए, और बदले आप उस वक्त के ऊपर ले रहे हो कि जब आपका मुल्क टेक्निकली डिफॉल्ट कर गया। 3 बिलियन डॉलर आपके सारे रह गए हुए हैं रिजर्व्स, और वो भी 3 बिलियन डॉलर भी आपके नहीं है, आपके मांगे ताके के, चाइना के हैं, सऊदीया के हैं, यूएई के हैं, मांगे ताके के आप उनके पैसे लेकर भी खा गए हुए, आप उनमें से भी आ गए, और आज आप बैठ कर ये कहानियां सुना रहे हो हमें। ये सारी फुटेजेस देखकर मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता था कि जी तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार के अंदर भी बहुत कुछ हुआ था, बहुत सारे लोग थे तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार के अंदर भी जिनको जेलें भी हुई, सहाफ़ियों की भी जेलें हुई। इमरान रियाज को जिस तरह आपने रखा FIA के हिरासत में, जिस तरह पेश किया गया, वो कहानियां वो विटनेस करने वाले लोगों ने देखे। मैं उसके ऊपर डिटेल में बात इसलिए नहीं कर रहा कि इमरान भी ने खुद उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं की है। शेख रशीद की मिसाल देख लीजिए, फवाद चौधरी को आप लोगों ने सोने नहीं दिया, की कीता सी उन्हें फवाद चौधरी ने, या तो वो इतने बड़े मुजरिम थे कि 302 चंदर दे लो उन्होंने, फाहे लवा लो, उन्होंने फांसियां दवा दो, कहो कि जी उनके जुर्म इतने बड़े थे। जब आपका मुल्क, आपका आइन उन्हीं लोगों को जमानतों पर रिहा करता है और कहता है कि दैट इज गुड, यू कैन गो होम। यार मतलब क्या कर रहे हो? सवाल पूछने के ऊपर, बात करने के ऊपर आप सियासत के अंदर जुबान का जवाब जुबान से भी दे सकते हैं। मैं मौजूदा हुक्मरानों से मुखातिब हूँ, सियासत के अंदर जवाब या सियासत का जवाब सियासत से दिया जाना चाहिए, जुबान का जवाब जुबान से देना चाहिए, ना कि शेख रशीद जिस तरह 75 साल के बंदे को झंझोड़ रहे हैं आप लोग, इस तरह झंझोड़ना चाहिए। आप क्या तरबियत कर रहे हो नौजवानों की? कल को यही नौजवान हमारे जो सियासत में आना चाहते हैं, जो आपकी ये हरकतें देख रहे हैं, क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हो आप इनके ऊपर? मैं फिर कहता हूँ कि ये किसी एक हुकूमत का अलमिया नहीं है, हर हुकूमत में जुबानें काटी जाती रही। यहाँ पे जरदारी की जुबान काटने की कोशिश की गई, कि जुबान ही काट दो, सैफुर रहमान ने कोशिश की, और ये तमाम रवैये आपके गले पड़ जाएंगे। आपको पता नहीं है कि आप इस कौम के साथ, इस यूथ के साथ, इन नौजवानों के साथ, इन बच्चों के साथ, आने वाली नस्लों के साथ कर क्या रहे हो। आप हमारी तरबियत क्या कर रहे हो? आप हमें ये सिखा रहे हो कि जिदा हथ पै जाए लितरा ना मुंह काट दो अगले बंदे का। आपके जो इख्तलाफ करे, जो आपके तर्ज अमल से इख्तलाफ करे, जो आपके तर्ज सियासत से इख्तलाफ करे, उन्हें तुन के रख दो। शेख रशीद के साथ यही कर रहे हो ना, फवाद चौधरी के साथ यही किया था ना तुम लोगों ने। इसका मतलब ये कि वक्त तो फिर नहीं फिरना है, ये अल्लाह का फैसला है कि दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, वक्त तो फिर नहीं फिरना है। इसका मतलब है कि आप इमरान खान और उसकी पार्टी और उसके एलाइज को ये पैगाम दे रहे हो कि कल नु आओ ते अता तारण फड़ के पुट्ठा टंगे आ जाए, कल नु तुसी आओ ते राणा सनाल नु फड़ के जेलां विच इंज ही मदोड़े आ जाए जिवें तुसी आज शेख रशीद नु मदोड़दे पे हो। अल्लाह का नाम है यार तुम लोग को। ये सियासत नहीं है भाई, ये आप लोग तो लगता है कि किसी गली की चौक चौराहे में बैठे हुए अनपढ़ जाहिल लोग जो लड़ पड़ते हैं और माओ बहनों की गालियां देते हुए एक दूसरे के जेलों में ले जाकर गिरेबान फाड़ देते हैं। ये किस किस्म की सियासत कर रहे हो इस मुल्क के अंदर? क्या ये विक्टिमाइजेशन की सियासत, ये इस टाइम पे मुल्क आपका मुतहम्मिल है? एक तरफ आप APC बुलाते हो, एक तरफ आप हमें विजुअल्स दिखाते हो शेख रशीद को धक्के मारते हो और सड़कों के ऊपर और चौकों में गिराते हुए, और फिर कहते हो कि जी APC के अंदर तरीके इंसाफ नहीं आई थी। सहाफ़ी जो है वो जो तनकीद जो करते हैं वो यूतिया सहाफ़ी है। हमें विजुअल जो नजर आ रहे हैं हम तो उसके ऊपर बात करेंगे ना भाई। अल्लाह का वास्ता है आप तमाम लोगों को इसको कंडेम सबके सब कीजिए। सबसे पहले नून लीग के जो कुछ ज़र्फ वाले लीडर हैं, जिनका कोई खानदानी ब्लड लाइन्स में से लोग हैं, इसके को कंडेम करें, और वो तमाम लोग तरीके इंसाफ के जिनके दौरे इक़्तिदार के अंदर इस तरह की जुल्म और ज़्यादती किसी भी एक बंदे के साथ, तो स्टेप आउट, स्टेप फॉरवर्ड एंड अपोलोजाइज फॉर दैट। जमहूरियत का मतलब किसी की ज़ाती अना की तस्कीन के लिए काम करना नहीं है। जमहूरियत का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप एक बंदे को निशान इबरत बनाकर बच्चों को और आने वाले लोगों को ये पैगाम दे कि ये सियासत का तरीकाकार है, सियासत इस तरह होती है। ये बिल्कुल सियासत का तरीकाकार नहीं है। केसेस हैं, बाकायदा केसेस बनाएं, इन्वेस्टिगेट करके बनाएं, अदालतों को सजाएं देने दें। यूं इस तरह के विजुअल और इस तरह की फुटेजेस लीक करके शेख रशीद की, फवाद चौधरी की, इमरान रियाज खान की, हमें आप ये तो बता सकते हैं कि फैशिज्म है पाकिस्तान के अंदर, या हमें ये तो बता सकते हैं कि एक जो बज़ाहिर शक्ल जो है वो जमहूरियत है और पीछे जो बैक बाकायदा माइंडसेट जो है वो डिक्टेटरशिप का है। शहबाज शरीफ साहब, आपके इस हुकूमत के ऊपर जो सवालिया निशान उठ रहे हैं ना, आप तारीख कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। आपको इन तमाम चीज़ों के जवाब देने पड़ेंगे। और बकवास है, सबके सब रबिश है वो, कि जब आप ड्रामे करते हैं आके, देखिए हमारे लीडरान के साथ क्या किया था, हमारे लीडरान के साथ क्या किया था। हुसैन नवाज जिस तरह नैब में पेश हुए थे और एक कुर्सी के ऊपर बिठाया गया था, उसके ऊपर आसमान गिर गया था हमारे सहाफ़ियों के ऊपर। जी देखें, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की कुर्सी दबाता है। और आज शेख रशीद को आप घसीट रहे हो, उस 75 साल के बंदे को
गलियों के अंदर सड़कों के ऊपर आप घसीट रहे हो हथकड़ियाँ लगा कर, और यहाँ पर किसी के बुनियादी इंसानी हकूक नहीं जागे। फवाद चौधरी को सारी सारी रात आप सोने नहीं देते और धक्के मार मार कर आप उसको अदालतों में पेश करते हो, वहाँ पर उसके माथे के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर पेश करते हो, वहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। बेशरम है वो लोग जो इस सारे सूरत हाल के अंदर भी खौफ से डर कर चुप करके जाती मफाद के लिए चुप करके बैठे हुए। कल नू सारियां कीमतां आप लोगों को भी देनी पड़ी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह कभी ना करे कि इस तरह की कीमतें किसी को देनी पड़े, क्योंकि विक्टिमाइजेशन और बदला लेने की सियासत के मैं सख्त खिलाफ हूँ। जमहूरियत रवादारी का नाम है, जमहूरियत बुर्दबारी का नाम है, जमहूरियत बड़े ज़र्फ़ का नाम है। जमहूरियत वो है जो नवाब ज़रा नसरुल्लाह खान ने जिस जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की थी वो जमहूरियत थी। ये बेशर्मों वाली जमहूरियत कोई जमहूरियत नहीं है, डिक्टेटरशिप से भी बदतरीन जमहूरियत है कि जिसके अंदर आप लोग इस तरह की विजुअल्स और इस तरह की फुटेजेस और इस तरह की फ़ोटोज़ लीक करके आवाम को दिखाकर डराना चाहते हो और बताना चाहते हो कि साड़ी हुकूमत के खिलाफ बोलोगे तो ये होएगा। बहरहाल वक्त बदलता है, बदलने का इंतज़ार करें। आप लोगों की तो कमर की पेन ही नहीं जानी अगर आपको इस तरह के धक्के पड़े। वो तो शेख रशीद और फवाद चौधरी हैं जो आपकी सह गए हैं, लेकिन बहरहाल तुहाड़ियां कंडां दियां पीड़ा भी नहीं जानियां। और मैं दुआ करता हूँ कि अगर आप लोग अभी भी शर्म नहीं खाते, आप लोग को अभी भी अकल नहीं आती, तो कल को आप में से किसी बंदे को कोई लंदन ना जाने दे, कल को कोई जनरल बाजवा ना हो कि जो आपको लंदन निकलने में मदद फराहम कर दे। कल नू तुहानू रगड़ा इत्थे ही लगना चाहिए, और तुहानू इंज ही धक्के शहबाज शरीफ नू, मेरी जाती ख्वाहिश है कि इसी तरह के रगड़े शहबाज शरीफ को भी लगें, ताकि आने वाली नस्लों के लिए हमारे प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि जमहूरियत, रवादारी, बड़े ज़र्फ़ और ख़ानदानी लोगों का काम है सियासत, ना कि इस तरह की छोटी और नीच और घटिया सोच रखने वालों का काम है कि जो इस तरह विक्टिमाइजेशन करते हैं। दुआओं में शेख रशीद को याद रखिएगा, अपने सारे इख्तलाफात भुलाकर। मैं ज़ाती तौर पर बार बार कह रहा हूँ, मुझे शेख रशीद के ज़ुबान के से, उनके तरीक़ा वो जो तरीक़ा सियासत से नहीं, उनकी ज़ुबान से मुझे बहुत सारे इख्तलाफ रहे हैं, आज भी हैं। मैं उन इख्तलाफात के ऊपर स्टैंड करता हूँ, लेकिन 75 साल का आदमी है, उसको निशाने इबरत यूँ नहीं बनाया जाना चाहिए था।